JEE में. So first curve is position time curve. Position time curve, a graph. What is that? It's a graph plotted for position versus time. Suppose position, I'll denote this as x-axis, particle is moving on this line, and this is time axis in seconds, and suppose this is in meter. So position time curve means what? If I mark seconds here, this is 0 seconds, 1 second, 2 second, this is 3 second, 4 second, 5 second, 6 second, 7 second, and so on. And this is meter. 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter. This is minus 10, minus 20, minus 30, and so on. So particle is moving here on this line. This is position or the path of the particle, and this is time. So Sir, at the position negative भी होता है क्या? Position is given by coordinates. Suppose this is a straight highway on which you are moving. Okay. If this is started, this is considered as origin. मतलब ये starting point है. अगर इधर जाओगे आप 1, 2, 3, 4 ऐसा, तो इस साइड में क्या होगा? -1, -2, -3 एंड सो ऑन. पोजीशन आपको यूनिक होना चाहिए, राइट? अगर मैं बोल रहा हूँ x = 1, तो आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि इस साइड 1 या इस साइड 1. तो लेफ्ट साइड इज टेकन एज नेगेटिव एंड राइट साइड इज टेकन एज पॉजिटिव. ओके सर. समझा? हाँ. सो ये हो गया आपका नंबर लाइन. अभी at t = 0, सपोज यू स्टार्ट फ्रॉम हियर. आप 0th सेकंड पे यहाँ पे थे. 1 सेकंड के बाद यू आर एट 30, तो आई विल मार्क 30. और 1 सेकंड के बाद यू आर एट 30, यू आर एट 20 अगेन. 3 सेकंड पे यू आर 20. 4 सेकंड्स पे यू आर एट ओरिजिन यहाँ पे. 5 सेकंड्स पे यू आर एट -10. 6 seconds पे you are at -20. 7 seconds पे you are at origin again. ठीक है. So ये ग्राफ में अभी मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं. These points tell us that at 0th second your position is 20. At 1 second your position is 30. At 2 seconds your position is still 30. At 3 seconds, your position is 20. At 4 seconds, your position is 0. At 5 seconds, your position is -10. At 6 seconds, your position is -20. Now, my question is, does this implies that you were not present anywhere at 2.5 seconds? ऐसा हो सकता है क्या कि 2.5 seconds पे आपकी कुछ position ही ना हो? No, sir. Hello? No. At every instant you were present somewhere, right? Your position is described for every instant, right? At 0th second you were here. That doesn't mean कि at 0.01 second you were nowhere. तो 0.01 seconds पे भी तो कुछ position हो गई. 1 second पे ये है, तो 1.5 पे भी तो कहीं आप होगे. 2 seconds पे तो हो आप. 2.1, 2.2, 2.3. हर instant आपका position defined होगा. That means this curve or this graph is not discrete. ये discontinuous curve नहीं होता, is not discrete. It is continuous curve. ये curve कभी टूटता नहीं है. कौन सा? Position time curve discontinuous नहीं होता. It's always continuous. हर instant आपकी कुछ ना कुछ position तो थी, right? That means now next I need to join these points. ये points को मुझे join करना है. तो उसके लिए जो कनेक्टिंग लाइंस या कनेक्टिंग कर्व्स होते हैं हमारे सिलेबस में ये वैरायटी है. ये दिस वन, दिस वन, दिस वन, हेलो. एक 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ. 2 मिनट में आ रहा हूँ.
you go through this graph once. You have seven connecting lines or curves. This is horizontal. This is inclined line, forward inclined line, backward inclined line, sloping up curve, sloping down, decreasing. Negative slope hai, but decreasing hai. This is increasing in magnitude. Okay. So, एक word है slope. Slope or gradient. ठीक है. Slope or gradient. नहीं. Slope means what? See, this is again a topic of maths, but not very difficult to understand. See, literature meaning क्या होता है slope का? जैसा ये line है, right? So, one second. So, this is a line, horizontal line, right? If I ask you what is the slope of this line, so your answer is 0. So, slope of this line, slope is 0. Usually we denote by m. So, slope of this line is 0. Now, ये जो line, this is forward inclined line. इसका कुछ slope है, in fact up slope है. This has an up slope, right? So ये जो line है, इसका slope मैं बोलूँगा is positive and constant. Why constant? As you move ahead, slope does not changes. इसका slope आगे जाते जाते change नहीं हो रहा. तो एक line का एक ही slope होता है, right? So this is a line which is forward inclined. Its slope is constant and positive. Now this line, this one. This is a line which is backward inclined, right? ये down slope है. इसका slope I'll say is negative and again constant. Just see if it is clear to you. Slope word का मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Sure na? Okay. So slope of horizontal line is 0. Neither it is upslope nor downslope. If you increase the slope, that means line is forward inclined. इसका slope positive है, increase हो रहा. This is infinite slope. And अगर down slope, I say the slope is negative, increasing, negative and increasing, negative, and again minus infinity, right? So slope is constant for straight line. For positive forward inclined line, slope is positive, and for backward inclined line, slope is negative, right? Now, slope of a curve changes. See, यहाँ पे एकदम flat है curve. आगे जाते जाओगे slope बढ़ते जा रहा. So this is a curve, slope of which increases as you move in forward direction, right? So this curve has increasing slope. Getting my point? See, here curve is flat. यहाँ पे curve का slope बढ़ते जा रहा. यहाँ पे curve का slope बहुत ज़्यादा हो गया. ये जो slope है ये, this one, this is infinite slope. ये हमारे syllabus में curves में होता ही नहीं, exist ही नहीं करता. Right? Maths में you will find this curve, this line parallel to y-axis, but physics में ये कहीं नहीं मिलेगा आपको. Time axis के perpendicular कोई चीज नहीं होती. So ये जो curve है, इसका slope बढ़ रहा है. Slope of this is positive and increasing. This one, slope is positive and decreasing. Here, if you move ahead, slope, curve आगे जाते जाते flat होते जा रहा. See, slope is positive but decreasing, right? So as you move ahead, curve becomes flatter, curve becomes flat. That means its slope is decreasing but remains positive. ये पूरे time slope जो है वो positive था, right? Clear ना? Then ये सब note कर लेना, it's very important. Note it. I'll give you 1 minute. रफ मत कीजिए, नोट कर लेते हैं.
this is a curve, slope is positive at every point, slope is positive. ठीक है, तो slope is positive and ये हमेशा आगे की तरफ कर्व झुका हुआ and slope is decreasing. So slope is positive and decreasing. नीचे भेजा ना. So slope is positive and decreasing. Why? Curve here is slow, steep. यहाँ पे steep है, आगे जाते जाते curve flat होता है. तो slope is positive and decreasing. हाँ. सर वहाँ पे वो नीचे लिखा है ना पॉजिटिव, वहाँ पे m is equals to positive, m is equals to negative. And increasing. अच्छा वो increasing लिखा है. हाँ. हाँ, ये increasing. Okay, so this is a curve with positive slope but decreasing. Now this one. At every point, slope is negative. At every point, slope is negative. So slope is negative. अब ये बताओ, slope बढ़ रहा है या घट रहा है? Anyone? ये थोड़ा सा confusing part घट रहा है. है. यहाँ पे slope बढ़ रहा है या डिक्रीजिंग. बढ़ रहा है. दोनों है. पर हाँ दोनों है सर. नेगेटिव यहाँ पे देखना, जैसे स्टीप है कर्व, तो यहाँ पे वैल्यू मैग्नीट्यूड ज्यादा है, समझो -4 है, एक एग्जांपल बोलो, या -2 है, या -1 है, या -0.5, तो -4 इज ग्रेटर और -0.5, ऑब्वियसली -0.5. तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, slope is increasing, but if you talk of magnitude, it is decreasing. तो magnitude इसका decrease हो रहा है, but overall slope की बात कर रहे हो तो slope increase हो रहा है and decreasing in magnitude. ठीक है, so it is decreasing and increasing but decreasing in magnitude. सिर्फ magnitude की बात करोगे तो 4, 2, 1, 0.5. Right? Now, answer for this one. Slope कैसा है? हाँ बोलो. Slope कैसा है? Positive या negative? नेगेटिव. Slope is negative. Increasing or decreasing? डिक्रीजिंग. Increasing in magnitude. वापस से वही चीज हो गई. यहाँ -0.5, -2, -3, -5 and so on. So slope is negative, पहली चीज. Then it is decreasing. Slope is decreasing. Magnitude ना? Correct, but increasing in magnitude. Magnitude इसका बढ़ रहा है. ठीक है, ये एक कहानी हो गई. Now, question is, what is measure of slope? Slope का measure क्या होता है? ये हो गया. ये भी कॉपी कर लो, फिर उस पर अब करके मैं slope का magnitude समझाऊं आपको. Okay. Now, question is, how do we measure slope? Yeah, what is measure of a slope? So, for straight line, what is slope? This is straight line, right? Slope of a straight line is defined as mark any of the 2 points. कोई भी 2 points mark करो.
write its coordinates, right? This is suppose x1 y1. X stands for this horizontal axis and y is vertical axis, and coordinates of this point are x2 and y2. The slope of a line is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Again, I'll tell you, this is very important. आपको physics lab में भी use करना है, practicals में, theory में भी use होना है, maths में भी use होना है. This you'll need everywhere. So you should know how to measure slope. The slope is measured by formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1. First thing. Second, if this line makes an angle theta with positive x-axis, the slope is tan of angle theta. The slope is tan of angle theta. Then finally, vertical by horizontal. Draw a triangle, right angle triangle, with any of the 2 points as vertex of end points of hypotenuse. Then this vertical by horizontal is your measure of slope. Okay, so measure of slope. How do we measure slope of a straight line? Slope of a straight line is measured as y2 minus y1 upon x2 minus x1. Or if it makes an angle theta with horizontal axis, then slope is tan theta. Or draw a right angle triangle with 2 points as endpoints of hypotenuse. Then vertical by horizontal gives you what? Gives us slope of the line. Okay? Is it clear? बोलो, स्लोप निकालना समझ में आया? यस सर. Yes, sir. सर एक बार रिपीट कीजिए ना. Then, okay. See, कोई भी line ले लो. ये this is a line. ठीक है? Suppose this is a line. This point is 3, 8 and this is 7, 2. कोई बोलता है आपको इसका slope निकालो. तो slope is what? Any point as x1, y1, other as x2, y2. So suppose this is x2, y2. So 2 minus 8, y2 minus y upon x2 minus x1, 7 minus 3. So this is minus 6 upon 4, minus 1.5. The slope of this line is minus 1.5. Backward line है, backward inclined, इसके लिए आपको slope negative दिख रहा है. Alright? The other way is, if it makes an angle theta, अगर theta दिया होगा, x axis के साथ कितना angle बना रहा है, तो slope is given by formula tan theta. और ये वर्टिकल मेजर कर लो. हाउ मच इज दिस? एक्स एक्सिस के ऊपर ये 8 है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये 2 है, सो दिस इज 6. ये वाई एक्सिस से 7 है, ये 3 है, तो ये हो गया 4. तो 6/4 और बैकवर्ड लाइन है इसके लिए नेगेटिव साइन, राइट? सो यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स टू मेजर स्लोप ऑफ अ लाइन. देन नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ अ कर्व. स्लोप ऑफ कर्व कैसे निकालते हैं? स्लोप कर्व का हर पॉइंट पे बदलता है. स्लोप ऑफ अ कर्व changes is different at different points. Slope is different at different points. हर एक पॉइंट पे स्लोप कर्व का अलग होता है. तो स्लोप ऑफ कर्व इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. हर पॉइंट पे कर्व का स्लोप अलग होता है, राइट? तो स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट इज slope of tangent drawn to the curve at that point. क्या? Slope of a curve at any point. किसी भी point पे जो slope of curve है, that is slope of the tangent drawn to that curve at that point. For example, if someone says measure the slope of this curve at this point, so all you need to do is you have to draw the tangent. You have to draw the tangent, then measure the slope of this tangent. Slope of tangent drawn to the curve at any point is actually slope of the curve at that point. ठीक है? So slope of line तो ठीक है, but slope of curve is what? Slope of tangent drawn to the curve at any point. Okay?
क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now, ये हो गए एक और इंफॉर्मेशन. Now, next information. Slope of a curve. Any curve. In your syllabus, you have many curves. Some of them are given in textbook. Some of them are not given in textbook. You will find this topic in chemistry also. You'll find this topic in maths also. Everywhere, in all the three subjects, you'll find this topic, slope of a curve. So, slope of a curve, what is physical significance of it? In physics, I'll call it physical significance. What is physical significance? So, slope of curve represents relative change of quantity taken along vertical axis. I'll call this as vertical axis with respect to quantity taken along horizontal axis. मतलब basically dy by dx represent करता है. If y is vertical axis and horizontal axis is x, then slope of any curve is dy by dx. किसी भी curve का slope किसी point पे dy by dx represent करता है, right? So if I ask you, instead of y and x, if I call it xt curve, तो xt curve का slope क्या बताएगा? What will be slope of xt curve? Acceleration. Velocity. Velocity. But Velocity. correct. Vertical axis में y velocity. Y की जगह यहाँ x है और x की जगह यहाँ t है, तो it is dx by dt. So dx by dt we know very well is velocity. तो ऐसे बहुत सारे कर्व्स आपके सिलेबस में आएंगे. कुछ आप पढ़ेंगे, कुछ नहीं भी पढ़ेंगे, सीधे बोर्ड एग्जाम में या जेई के एग्जाम में मिल जाएगा, राइट? मेनी कर्व्स इवन आई में स्किप कभी गलती से मुझसे छूट गया, तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड. कोई भी अचानक से नया कर्व आएगा, तो नया कर्व होगा, उसका मतलब क्या है? स्लोप. उसका मतलब क्या है? स्लोप मींस डी ऑफ दिस क्वांटिटी बाय दिस क्वांटिटी, डी ऑफ दिस क्वांटिटी. तो dx by dt. अगर यहाँ v होता था, यहाँ t होता, तो स्लोप क्या होता था? Acceleration. एक्सेलरेशन. dv by dt हो जाता था एक्सेलरेशन, राइट? सो स्लोप का फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिक्स में जो सिग्निफिकेंस है वो बता रहा है. Slope of a curve represents relative change of quantity taken along vertical axis with respect to quantity taken along horizontal axis. Right? ये एक टॉपिक होता है. Finally, ये भी नोट डाउन कर लो. Then I'll tell you what is area under a curve. एक कर्व के अंदर जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? So area under curve, slope of a curve हो गया, area under curve. What is area under curve? Displacement. तो area under curve क्या है? नहीं, area under curve in general किसको कहते हैं? Physical significance. Area under curve. कल कोई आपसे पूछ ले what does area under xt curve represents, तो आपका सोचने के लिए एक डायरेक्शन तो होना चाहिए, ठीक है? हर किसी का एरिया का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. जैसे xt कर्व के अंडर जो एरिया होता है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बट किसी किसी का होता है. तो व्हाट इज एरिया अंडर एनी कर्व? अप टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस. अप टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ y quantity and interval on x axis.
on horizontal axis. Horizontal axis ये होता है क्या? Product of y quantity and interval on horizontal axis. For example, if I multiply x with time interval x into delta t, ये क्या होता है? What is x into delta t? अगर कोई मुझसे पूछता था एरिया अंडर एक्स टी का, तो मैं बोलता था x into delta t. What is name for x into delta t? There is no such quantity, right? So xt curve के एरिया अंडर xt curve का कोई मतलब है ही नहीं. You will not see a single question based on area under xt curve. हाँ, अगर ये vt curve होता है सपोज, या at curve होता है, तो अगर मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन लिया होता तो एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी, कैन यू से व्हाट इज इट? एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी. सुन रखा है क्या होता है? सर नहीं समझा. Change in velocity. एरिया अंडर चेंज इन वेलोसिटी. हाँ, कौन सा पार्ट नहीं समझा चिन्मय? सी इंस्टेड Product of ऑफ y-axis. xt कर्व, सपोज में है, हाँ ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सपोज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया होता, तो ये वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस में क्वांटिटी क्या है? a. तो a इंटू ये टाइम एक्सिस है, इसका इंटरवल डेल्टा टी है, तो a इंटू डेल्टा टी. तो a इंटू डेल्टा टी क्या होता है? a इंटू डेल्टा टी क्या होता है? Velocity. बोलो. Change in velocity. नहीं, चेंज इन वेलोसिटी. हाँ, तो वही लिखा a इंटू डेल्टा टी इज डेल्टा v. सपोज ये कर्व a इंटू एक्स होता, a वर्सेस x होता, तो इसका जो एरिया अंडर कर्व आता था वो क्या होता था? a इंटू डेल्टा एक्स. लेट मी सी इफ एनीवन रिमेंबर्स व्हाट इज a इंटू डेल्टा एक्स. याद है किसी को? अभी परसों ही किया हमने, परसों नहीं कल ही तो किया. हेलो, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे एग्जाम में, आपने पढ़ा नहीं होगा, अचानक से सामने आ जाएगा. a वर्सेस x का, ये तो एक्स वर्कशीट में भी हमारे दिया हुआ, a वर्सेस x, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं. जेई में कई बार पूछे हुए, स्कूल एग्जाम्स में यूजुअली दे डोंट आस्क. Sir, v square Anyone, minus anyone, u anyone? square by 2. Sir, क्लोज था बेटा, बट थोड़ा सा गड़बड़ था. हाँ, क्लोज था. v square. आई विल से v डेल्टा v, v डेल्टा v बोलो, वो सही है, मतलब आई विल से सही है आपका. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एक्चुअली मेरी गलती है, यहाँ पे मुझे dx लिखना चाहिए था, वो डेल्टा की जगह यहाँ पे dx लिखना चाहिए था. तो a dx is v dv, ये होता है. ये कहाँ पढ़ा हमने? एक्सेलरेशन इज v dv बाय, सॉरी, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt होता है. फिर हमने ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई किया था, तो dx बाई dt इज v, तो ये v dv हो गया और dx इधर आ गया, तो a dx. तो वो मेरी गलती है, आप सही थे. a dx का वैल्यू होता है v dv. अगर मैंने डेल्टा x लिख दिया है तो इट शुड बी आफ्टर इंटीग्रेशन, तो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 हो जाता है. माय मिस्टेक, आई शुड राइट dt इनफिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू. तो a dx इज v dv. हाँ, डेल्टा x कर दोगे देन इट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2. ये कहाँ पढ़ा है हमने? ये हमने सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन में पढ़ा था. a इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, तो a इंटू एस क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s, राइट. बट होता क्या, अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो फिर ये डेफिनेशन काम नहीं आती, तो उस टाइम आपको ये सोचना पड़ता है. तो इनफिनिटेसिमली स्मॉल क्वांटिटीज के लिए ग्राफ कन्वीनियंट, मतलब यूजफुल तभी होता है. ओके, वापस एक्सप्लेन करूं? काव्या, Yes, sir. अभिजीत, I'll explain again. नहीं सर, समझ गया. Okay. So ये था हमारा एक एरिया अंडर कर्व का सिग्निफिकेंस. ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू मेन टॉपिक. सो एरिया अंडर कर्व आपको समझ में आ गया, व्हाट इज स्लोप ऑफ अ कर्व समझ में आ गया. नाउ वी कैन स्टार्ट विद अवर
मेन टॉपिक। सो आ जाते हैं हम लोग xt कर्व पे। सो xt कर्व, लेट अस ट्राई टू डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल xt कर्व। तो पहली चीज तो मैं बता दूं आपको, एरिया सॉरी स्लोप ऑफ xt कर्व, स्लोप ऑफ xt कर्व इज वेलोसिटी, स्लोप सर ऑफ पोजीशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा ना। वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर थ्रू आउट कांस्टेंट है तो वही एवरेज हो जाएगा। बट बहुत अच्छा बोला बेटा, मेरा कुछ कुछ चीजें मिस हो जा रही मेरे से। स्लोप ऑफ xt कर्व इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। टू बी प्रिसाइज आई शुड राइट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। स्लोप ऑफ xt कर्व इज instantaneous velocity. To be precise, it's not just velocity, ये उस पॉइंट की वेलोसिटी, टाइम इंस्टेंट की वेलोसिटी बताएगा जिस इंस्टेंट पे आप स्लोप निकाल रहे हो, राइट। तो xt कर्व का जो स्लोप होता है, दैट स्लोप इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ऑब्वियसली अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो हर जगह पे स्लोप सेम है, मतलब हर जगह वेलोसिटी सेम है, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस इन दैट केस वुड बी सेम, right? But the actual definition says slope of xt curve is instantaneous velocity. So note it, it's very important. एक ही physical significance है xt curve का, बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। Okay, let's write the analysis. अगर horizontal xt curve है, if xt curve is horizontal, then what does this means? If xt कर्व ऐसा है, मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी व्हाट कैन जीरो वी है। से अबाउट मोशन ऑफ द पार्टिकल? It is at rest. वेलोसिटी जीरो। Velocity zero, it is at rest, correct. So particle is at rest and velocity is zero. Obviously velocity zero, that itself means particle is at rest, or vice versa, particle is at rest, that itself means velocity is zero। ठीक है। सो वेलोसिटी जीरो होना मतलब xt कर्व का हॉरिजॉन्टल होना, राइट। कैसे पता चला मुझे? xt कर्व का स्लोप ही वेलोसिटी होता है, xt कर्व का स्लोप वेलोसिटी होता है, एंड वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका स्लोप जीरो था, तो वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो हो गई मतलब पार्टिकल रेस्ट पे हो गया, ऑलराइट। ठीक है। व्हाट कैन यू से मोशन ऑफ द पार्टिकल फॉर दिस कर्व? इसके लिए क्या बोलोगे आप? कांस्टेंट। एक इंक्लाइन लाइन दिख रहा है, क्या कांस्टेंट है? Velocity. वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और पॉजिटिव है या नेगेटिव? वेलोसिटी इज नो Positive. डाउट कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, राइट। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, राइट। नेक्स्ट कर्व, अगर कनेक्टिंग ग्राफ ऐसा बना है, डाउनवर्ड इंक्लाइन लाइन, तो बैकवर्ड इंक्लाइन लाइन, तो Velocity is कैसा है? constant In this case, and negative. velocity velocity is constant and negative, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, अगर xt कर्व जो फोर्थ नंबर पे जो कर्व बना हुआ, ऐसा कर्व हुआ है, तो आप क्या बोल सकते हो? व्हाट कैन यू से अबाउट दिस मोशन? These two, in all these Velocity three is cases, increasing. velocity, very good, velocity Is is increasing. positive। सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह सकते हैं। किसमें? इस केस में या सर इन तीनों इस केसेस कर्व में? में इन तीनों केस में तो फोर्थ एक्सेलरेशन वाले में। जीरो। हाँ, इसमें से इस फोर्थ कर्व वाले में में। अब, हाँ करेक्ट, बहुत अच्छा डाउट पूछा वैभव ने। इन केसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है? तो उसके लिए मैं एक और लिस्ट बताऊंगा आपको। ये जो कर्व है ना, आपके सिलेबस में अलग अलग टाइप के कर्व होते हैं, हालांकि हमारे सिलेबस में इतना भी डिटेल नहीं, इंजीनियरिंग। ये कर्व देखने में मैं जो दिखा रहा हूँ इससे बहुत सारे ऐसे एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। ये तीनों, एक होता है स्क्वायर पैराबोला, स्क्वायर पैराबोला
इसमें टाइम के साथ प्रोपोर्शनैलिटी, ये भी नोट करके रख लेना, हालांकि इतना डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं आता और जेई में भी नहीं पूछते। क्यूबिक पैराबोला होता है, ठीक, और एक होता है 4th डिग्री पैराबोला। ऐसा कुछ भी बना सकता है, 5th डिग्री पैराबोला भी होता है, कुछ भी हो सकता है पैराबोला। इसका एक लाइन लिखाऊंगा मैं आपको बाद में। इसमें प्रोपोर्शनैलिटी t⁴ होती है। तो अगर स्क्वायर पैराबोला है तो इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इसमें एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू t² होता है। वो आसान है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो t³ बनेगा, वो वेलोसिटी का हो जाएगा। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो t² बनेगा, वो एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन की प्रोपोर्शनैलिटी t² जाती है। एक लाइन लिखाऊंगा मैं बाद में इसके लिए कि जब x ऐसा होगा तो v कैसा होगा और a कैसा होगा। ठीक है, ओके, समझा ना वैभव? डाउट क्लियर हुआ वैभव? यस सर। हाँ, तो वो Yes, कौन sir, सा कर्व है, जब तक आप मुझे नहीं बताते, हाँ, तब तक मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। बट मोस्टली जो हमारे सिलेबस में कर्व वाले पार्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तक ही आते हैं, और आ भी गए तो अपन मना नहीं कर सकते। जेई में देयर इज नो एंड, ठीक है, और स्पेशली एडवांस में, जेई एडवांस में तो ऐसा वो लिमिट नहीं करेंगे अपने आप को, कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए। तो मैं 2 लाइन लिखाऊंगा, आप वहां से आइडेंटिफाई कर लो। एनीवे, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, ठीक है। एक पॉइंट मैं पूछना भूल गया, एवरीवेयर आई हैव रिटन वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, स्पीड का क्या? जैसे सेकंड केस में आपने बोला, राइट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो व्हाट कैन यू से अबाउट स्पीड? इस केस में वेलोसिटी आपने बोला कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, स्पीड का क्या? स्पीड भी कांस्टेंट ही है, बिकॉज स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ना। भी कांस्टेंट नहीं मिलता, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज स्पीड में ऐसा नहीं होता, बट यहाँ पे हर इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं। कर्व्स में यूजुअली वी टॉक ऑफ एवरी इंस्टेंट, तो इस केस में यस, स्पीड एट एवरी इंस्टेंट इज सेम एज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, राइट? व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पे हर इंस्टेंट की बात बोल रहा हूं मैं, इसके लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी वही स्टोरी है जो इसका। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है बट पॉजिटिव ही रहेगा इस केस में, राइट? इन दिस केस स्पीड इज पॉजिटिव और नेगेटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो स्पीड इज, इवन स्पीड का स्टोरी सेम, स्पीड इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। Now, this one, in this case, velocity की क्या कहानी है? Velocity positive है या negative है? In this case, velocity is positive or negative? पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड Velocity डिक्रीजिंग, is positive. Increasing or decreasing? And डिक्रीजिंग, decreasing. So velocity decreasing. Velocity is positive and decreasing. Correct. Very good. What can you say about speed? Speed बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या कर रहा है? स्पीड भी डिक्रीज हो रहा है। Speed is also decreasing. ठीक है? So speed is decreasing. Then next, in this case, velocity is positive or negative? नेगेटिव। Velocity is negative. Velocity is negative. Increasing or decreasing? इंक्रीजिंग, Velocity negative तो पक्का सोच के बोला ना, बिकॉज आंसर तो करेक्ट है। हाँ सर, इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज हो रहा है ना। स्लोप इंक्रीज हो रहा है। What can you say about speed? स्पीड तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। इंक्रीज ही होगा। स्पीड डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। मतलब सोच के नहीं बोला। स्पीड इस बार डिक्रीज हो रहा है। सर पर फिर से याद वेलोसिटी तो दिलाता हूं, इंक्रीज हो रहा है ना।
वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ -5 है, यहाँ 0 है, तो -5 बड़ा है या 0? 0. तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, बट इफ आई टॉक ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड -5 का बड़ा है या 0 का? हाँ -5 का, समझा सर, समझा, याद आया. हाँ, तो स्पीड जो है, स्पीड इज डिक्रीजिंग यहाँ पे, राइट? तो वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, बट अगर कोई गलती से स्पीड का पूछ ले तो बताना स्पीड इज डिक्रीजिंग. ठीक है, स्पीड इज डिक्रीजिंग. Yes sir. फाइनली इन दिस केस, हाँ, यहाँ पे क्या है वेलोसिटी की कहानी? वेलोसिटी इज Negative. definitely negative and decreasing. Velocity is negative and decreasing. What about speed? Speed is increasing. Because Speed magnitude is increasing. increasing. ठीक है, हाँ, magnitude of slope is increasing. Okay, समझा? Yes sir. ठीक है. So this is basic information which you need. इसको कॉपी कर लो, फिर मैं अपना आगे बढ़ता हूं. Let's understand what all things we can determine from. कर दो इसको. हेलो, कॉपी कर रहा हो या कर दूं?